आप सभी का न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। जिसमें मुख्य तौर पर अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू जाएंगे, जहां पर 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का कहीं ना कहीं वहां की सौगात देंगे वहां की जनता को। और इसके अलावा और भी कई सारी खबरें होंगी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। 3 नए IIM के उद्घाटन के अलावा 1,500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बोले, ममता बनर्जी के राज में अपराधियों को संरक्षण और मीडिया को चुप कराना दुर्भाग्यपूर्ण। मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए आज महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है वादा, किसी भी समुदाय के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठाओं को दिया जाएगा आरक्षण। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी आज सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में। 2018 के मानहानि मामले में होगी सुनवाई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से जुड़े बैलेट पेपर आज सुप्रीम कोर्ट में किए जाएंगे पेश। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कल खुद अदालत में मतपत्र पर क्रॉस चिन्ह लगाने की बात की थी मंजूर। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर समेत लद्दाख में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। कई प्रमुख सड़क मार्ग बाधित। और खेल की खबरों में एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाला ने घुड़सवारी में रचा इतिहास। ड्रेसेस स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक कोटा किया हासिल। ड्रेसेस में देश का पहला ओलंपिक कोटा। और हेडलाइंस के बाद चलिए इस वक्त सीधा रुख करते हैं इग्नू का, जहां पर दीक्षांत समारोह इस वक्त आयोजन चल रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां मौजूद हैं। By to an institution that you have been part for the past few years. My young friends, let us not solely fixate on the endings, for today is also a beginning. Today we celebrate not just the completion of a journey, but the ignition of new aspirations. Always bear in mind, your learning never stops. Friends, you are fortunate, you are lucky to step into adulthood at exciting times, our Amrit Kaal, where there is hope and possibility of all kinds. There is in place an ecosystem that is wholesome for exploring your talent and realizing your aspirations. Let me advert to the launchpad that all of you are presently standing on. And this is a very significant launchpad in the history of this great nation that has civilizational depth of 5,000 years. You are henceforth part of Marathon March to Viksit Bharat at 2047. Your launchpad is a mission, Bharat at 2047. Friends, governance, once shrouded in shadows, now embraces transparency and accountability. Corruption, once bane of the system, has now yielded to rule of law. Now all without exception are subject to accountability before law. All this has paved the way for your aspirations to truly take flight and dreams to fructify. Friends, on economic front, our story is one of remarkable dynamism, negotiating difficult terrain,
and tough challenges, we have traversed from being a fragile five global economy, a burden to the globe, to the glorious status of being the fifth largest global economy. Your ambitions can now be firmly set as we are on move to the third position in global economy in 2 years or so. The World Bank applauds our material rise in financial inclusion achieved just in 6 years when others projected, mind my words, others projected decades. The IMF hails India as a global investment hotspot, acknowledging the immense opportunities we offer. And friends, our projected GDP growth is double the global average. It speaks volumes about economic vitality and its robust premise. Friends, our strength transcends mere numbers. It lies in the power of collective action. We are now the third largest powerhouse in terms of purchasing power, showcasing the combined potential we hold. Just imagine, third global purchasing powerhouse, our Bharat. Our resilient financial ecosystem, fueled by an inclusive digital payment system, has become a global model. Not only do we use it, we export it. But imagine, I was a member of parliament in 1989 and a union minister. It was beyond my imagination, beyond my dreams. I dared not think what I'm seeing as a ground reality at the moment. Indians can now transact using our UPI evolved by Bharat in 7 countries, and UPI transactions alone in 2022 accounted nearly half of the global digital transactions. तो इस वक्त आप जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे। उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीखने की जो प्रवृत्ति है वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त इग्नू के 37वें दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सौगात देने जा रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क और विमानन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और इन सब में सबसे खास होगा IIT जम्मू, IIM जम्मू और एम्स जम्मू का लोकार्पण। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी एम्स जम्मू, IIT जम्मू, IIM जम्मू का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIITDM कांचीपुरम, IIM बोधगया, IIM विशाखापत्तनम, भारतीय कौशल संस्थान, IIS कानपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। आज भी जैसे आपने कहा लगभग 6 मंत्रालय केंद्र के हैं जिनके यहाँ पर लॉन्चिंग अथवा
या इनाग्रेशन रहेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है, रेलवेज भी है और एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। उसके अतिरिक्त यूटी के प्रोजेक्ट, यूटी के भी अधिकतर प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो सेंट्रली फंडेड है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का उतना ही हिस्सा बनने को तत्पर है जिस प्रकार के कोई अन्य राज्य अथवा प्रदेश। और प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर का उत्साहित है कि वो मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करे। पूरे देश में शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास की दिशा में बढ़ाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देश में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों के भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश में 5 केंद्रीय विद्यालय परिसरों, 1 नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए 5 बहुउद्देशीय हॉल का भी शिलान्यास करेंगे। ये नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भवन पूरे देश के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विजयपुर जम्मू का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में किया गया था। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित यह अस्पताल 720 बिस्तर, 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक और संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आवास, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुविधाओं से सुसज्जित है। It will provide most modern, state-of-the-art, comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir. Not only Jammu and Kashmir, but to the people of Leh and Ladakh, some parts of the Punjab and Himachal Pradesh. We have a special comprehensive services for the trauma patients. प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला नया टर्मिनल भवन भीड़भाड़ के दौरान लगभग 2,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज सहित महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन का बनाने के लिए चरण 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 161 किलोमीटर लंबे श्रीनगर बारामूला उड़ी खंड के उन्नयन के लिए 5 पैकेज और राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में CUF कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के जम्मू दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, जोरदार स्वागत है हमारा जम्मू में और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं हमारे जहाँ के, और ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। जम्मू कश्मीर को उन्होंने काफी परियोजनाएं दी हैं, कुछ और भी देने के लिए वो जम्मू में आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पिछले 70 साल से काम नहीं हो सके हैं कोई भी। तो जम्मू के लोगों को उनके ऊपर बहुत बड़ी आशा है। नियुक्ति पत्र है जो 1500 लोगों को दे रहे हैं, वो उसके लिए हम उनके बहुत बड़ी आभारी हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए कुछ करके जाए। जम्मू की जनता जो है कुछ बेरोजगार है, वो कुछ न कुछ करे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए 3,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ठीक मेरे पीछे मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद भी करेंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, जम्मू। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एम्स जम्मू का भी उद्घाटन करेंगे, तो साथ ही जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की भी आधारशिला रखेंगे।
इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सड़क और रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर में एम्स IIT खुल रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट हो गई है इतने सालों में, और इससे हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा है। हमें अपनी स्टेट में, अपनी यूटी में ही हमें सब मिल रहा है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इससे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसके लिए मोदी जी को थैंक यू। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही प्राउड मूवमेंट है। हमारे जम्मू में ही IIM IIT एम्स ओपन हो रहा है, तो जिससे हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जैसे जॉब हमारे पास इधर जम्मू में मिल पाएंगे हमें, और हम अपनी स्टेट में रह के ही पढ़ पाएंगे। हमें ऐसे बाहर दिल्ली, अहमदाबाद वहाँ जाने की मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर के पास रह के हम पढ़ पाएंगे। सो ये जो इनिशिएटिव्स हमारे PM ले रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ले रहे हैं, इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा ही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। We, the students of AIIMS Jammu, are very much excited and happy that मतलब AIIMS Jammu is finally getting inaugurated. We are waiting for a long time. मतलब एक ड्रीम हमारे जैसे पूरा हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। So thank you मिनिस्ट्री को एंड मोदी जी को एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया। Basically, I'm very glad that our institute is going to be inaugurated nowadays. And the thing is कि number of medical seats are also increasing in the India day by day. Like in the past, PM Modi also inaugurated several AIIMS like in Haryana and etc. all the other states. And अब हमारा होने जा रहा है on like 20th on Monday. तो it's like very exciting. आम जनता को उससे फ़ायदा होगा। कनेक्टिविटी रोड की बढ़ेगी तो उससे व्यापार भी ज़्यादा हो जाता है, आम लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। जो कश्मीर हमने सोचा नहीं था कभी ट्रेन जाएगी, लेकिन कश्मीर में ट्रेन चली गई और कश्मीर में अब हमारा सफ़र बिल्कुल आधे से भी कम हो गया है और टूरिस्ट भी बढ़ेगा और हमारा J&K सुपर जाएगा, सुपर। वहीं प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे को लेकर IIM जम्मू के छात्रों में भी खासा उत्साह है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जब से नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व की जाने वाली सरकार केंद्र में आई है, तब से काफी सारी सुख सुविधाओं पे फोकस किया गया है। His presence over here is a very important symbol of is very important aspect for us because it has been like such an amazing huge aspect that he will be coming here. PM Modi आ रहे हैं and it's a very big thing for IIM Jammu and for the education sector as a whole because now onwards from new education policy onwards हमारे education sector में बहुत changes आए हैं जिस कारण बहुत improvements आए हैं and हमें बहुत ज़्यादा नई opportunities मिली हैं। ये one of the latest IIMs है जिसका inaugurate होगा। इंडिया में टोटल 21 IIMs है जिसका ये पार्ट है और इस IIM के खुलने से जम्मू कश्मीर प्रांत में बहुत ही तरक्की होगी, बहुत ही रोजगार का जनरेशन होगा यहाँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू दौरा शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा और इसे लेकर IIT जम्मू के निदेशक मनोज सिंह गौड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। को प्रधानमंत्री मोदी IIT जम्मू के कुछ कैंपस को भी लोकार्पित करेंगे। हमारे साथ IIT जम्मू के डायरेक्टर मनोज सिंह गौड़ हैं। सर, क्या कुछ लोकार्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री? ये जगती में IIT जम्मू का परमानेंट कैंपस है। प्रधानमंत्री वर्चुअल मोड में एकेडमिक परिसर और हॉस्टल परिसर को लोकार्पित करेंगे। ये बहुत बड़ा परिसर है
इसमें हम लोग करीब 52 नई लैब्स, 104 फैकल्टी ऑफिसेज, बड़े इक्विपमेंट के लिए सिविल एंड मैकेनिकल के वर्कशॉप्स, इंक्यूबेशन इनोवेशन स्टार्टअप के लिए जहां इंक्यूबेटर्स आने वाले हैं उनकी जगह, और हॉस्टल जो करीबन हमारे पास में 650 बच्चों का है और उनकी डाइनिंग जो हॉल्स हैं उसको लोकार्पित किया जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या कुछ बनने वाला है? नेक्स्ट फेज जो करीबन 4 साल का होगा उसमें हम इसको दुगना कर लेंगे। रिसर्च की हम बात करें तो कौन कौन सा ऐसा फोकस एरिया है जहां पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं? आईआईटी जम्मू को हम ट्रांसलेशनल और ऐसी रिसर्च में थीमेटिक फोकस करना चाहते हैं जिसमें सोसाइटी को और प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी जिसको फेस करती है उसको हम एड्रेस कर पाएं। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो देश में ही तकनीक भी हो और उपकरण भी यहीं पर बने ताकि विदेशों में पर जो निर्भरता वो कम हो सके। हमारी कोशिश ये है कि हम डीप टेक स्टार्टअप में जाएं, जो आत्मनिर्भर भारत और जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 में विकसित भारत का हो, तो हम चीज़ों को हाथ से करके डेवलप कर पाएं। आईआईटी जम्मू जो 3G आईआईटी बनी थी उसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी है और इसको हम जारी रखना चाहते हैं और हम अपना योगदान भी उसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। बच्चों को रहता है सर कि प्लेसमेंट अच्छा हो, क्योंकि आईआईटी जाना भी जाता है इसीलिए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है क्या? प्लेसमेंट पिछले साल तक बहुत ही अच्छे थे। इस साल सभी आईआईटीज़ में और सभी संस्थानों में फ़र्क पड़ा है, बट अगेन ये चेंज है और चेंज को हम अडॉप्ट करना सीखेंगे। रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप पर खासा जोर रहेगा आईआईटी जम्मू का और यही विजन भी है और आगे जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक विजन है प्रधानमंत्री का उसको पूरा करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, जम्मू। और वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आम लोगों में भी खासा उत्साह है। क्या कह रही है जम्मू की जनता, आपको सुनाते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, जोरदार स्वागत है हमारा जम्मू में। हम जम्मू में काफी गाड़ियां लेके उनके पास जाएंगे और उनका पूरा आदर करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं हमारे जहाँ के, और ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। जम्मू मंदिरों के शहर में उनका स्वागत है। जम्मू कश्मीर को उन्होंने काफी परियोजनाएं दी हैं, कुछ और भी देने के लिए वो जम्मू में आ रहे हैं। है तो मुमकिन है। हमारे जम्मू कश्मीर में कल मोदी जी बता रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है और हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पिछले 70 साल से काम नहीं हो सके हैं कोई भी। तो जम्मू के लोगों को उनके ऊपर बहुत बड़ी आशा है। जम्मू में स्वागत है मोदी जी का। मोदी जी बड़ी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है कि मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं। और कल नियुक्ति पत्र है जो 1500 लोगों को दे रहे हैं, वो उसके लिए हम उनके बहुत बड़ी आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए कुछ करके जाए। जम्मू की जनता जो है कुछ बेरोजगार है, वो कुछ ना कुछ करे। हम चाहते हैं कि उन्होंने वैसे भी मतलब पूरे देश के लिए बड़ा कुछ किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि खास तौर पे जम्मू के लिए, जम्मू के युवाओं के लिए कुछ ना कुछ कल सौगात देके जाए। वहीं प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्मल सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री ने राज्य की तस्वीर ही बदल कर रख दी है, इसलिए लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर को बहुत सी सौगातें दी हैं, यहाँ IIM, IIT, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो एक्सप्रेस हाईवे, 6 मेडिकल कॉलेजेस, 5 लाख से ज्यादा गोल्डन जो बेनिफिशियरी हैं, और जम्मू कश्मीर में 1,35,00,000 जो लोग हैं, सभी को आयुष्मान भारत का जो है लाभ मिला है। तो इस प्रकार का जो उनका है, और अंत्योदय के अंतर्गत जिस प्रकार से यहाँ पर हजारों लोगों को मकान मिले हैं, हमारी माताओं बहनों को जो है उनको बहुत से सौगात मिली है, जैसे विधवा पेंशन, किसानों को 6,000 का जो उनको जो किसान सम्मान निधि मिली है, इसके कारण जो है लोग बहुत खुश हैं। और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज 10 में। खबरों में बढ़ते आगे, जहां संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी, उनकी सरकार और राज्य की पुलिस सभी चौतरफा घिरे हुए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एससी आयोग, महिला आयोग और तमाम एजेंसियां यहां हो रहे महिला उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं पर चिंतित हैं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। संदेश खाली का मसला फिलहाल हाईकोर्ट में है और अदालत ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा कर्मियों के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब आज शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि संदेश खाली में फिलहाल धारा 144 लागू है। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को निर्देश दिया है कि वहां किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय समिति ने भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से पुलिस ने रोक दिया था। आपको बता दें कि संदेश खाली वो जगह है जहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके गुर्गों की ओर से महिलाओं के यौन उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, जहां ना तो पीड़ितों की सुनवाई हो रही है और ना ही उन्हें इंसाफ मिल पा रहा है। एससी आयोग ने भी राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के हालात बदतर हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लोग कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए हम लोग निकलने वाला है, लेकिन मेरा पास, मैं उम्मीद करूंगा डीजीपी और एसपी बशीरहाट कोर्ट का ऑर्डर को अमल करेंगे। एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे सुबह फोन किया और बताया आप 11 बजे के बाद जाइए, लेकिन हम लोग निकलने वाला है। जो जानकारी मेरा पास है, ये लोग फिर संदेश खाली का जो रामपुर है वहां हम लोग को होल्ड करेगा। इसलिए होल्ड करेगा, डिवीजन बेंच में ये लोग स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए होल्ड करेगा। ये भी इलीगल है। बंगाल का जनता टीएमसी ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए पुलिस को देकर ये सब कर रहा है। कल एक पत्रकार, नेशनल चैनल का पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया। इसलिए आज हम लोग ब्लैक डे मना रहा है पूरा प्रदेश में। हम सब एमएलए लोग सब ब्लैक रिबन लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है। बंगाल का हालत बहुत खराब है। लॉ मेकर उसका काम नहीं कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी को पूरा हैंडीकैप बना दिया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब प्रसन्नजीत, जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस पर उठा रही हैं। और इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि जब कोई अन्य पार्टी का नेता या कोई जब आयोग वहां पर जा रहा है तो पीड़ितों को मुलाकात तक नहीं करने दी जाती वहां पर। कृतिका, ये सही है। और आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी करीब धामाखाली के पास पहुंच गए हैं। धामाखाली वो जगह है जहां से नदी पार करके संदेश खाली जाना पड़ता है। और बताया जा रहा है कि वो, जैसे उन्होंने जाने की पहले जो बात की है, जो हम अभी हमारे दर्शकों को सुनाया, हो सकता है ऐसा ही हो कि उसी धामाखाली में उनको रोक दे, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच के सामने अपील किया जाएगा कि किस तरह से सिंगल बेंच की तरफ से जैसे शुभेंदु अधिकारी को जाने का अनुमति दिया गया, इसको चैलेंज करते हुए डिवीजन बेंच में अपील किया जाएगा। तो जब तक उसका फैसला ना आ जाए तब तक धामाखाली में हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को होल्ड किया जाए। तो ये भी एक ऐसी तरीका है कि किसी ना किसी तरह से जो बाकी आवाज है, मतलब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बाकी राजनीतिक दलों का जो आवाज है, चाहे वो किसी कमीशन का आवाज है, मतलब चाहे वो एससी कमीशन हो, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो, ये सबकी आवाज को दबाने का एक कोशिश है। और किसी न किसी तरह से जो पीड़ित महिला है उन तक ना पहुंचने देना, कि वो जो बातें
खुलकर आज से 15 दिन पहले कह चुकी थी, खुलकर वो बातें फिर से कहे और पिछले 15 दिनों के अंदर संदेश की भीतर भीतर गांव-गांव में जो तृणमूल के लोग घर घर पहुंचकर लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर दबाव देने की कोशिश की है, इसका नतीजा क्या निकला इसके बारे में पता चले। इनसे पूरे देश को, पूरे दुनिया को अंधेरे में रखने के लिए ये जो एक कोशिश है सरकार की, वो आज भी जारी है। शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल, ये तीनों मिलकर, अगर आप ये कहें कि सरकार जो चारों तरफ से घिरे हुए है, संदेश खाली तीनों तरफ से घिरे हुए हैं कि एक तरफ शासन, दूसरी तरफ प्रशासन और तीसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस। कृतिका जी, प्रसन्नजीत, जिस तरीके से हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वहां पर जानकारी ये भी मिली है कि मीडिया के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है वहां पर। बिल्कुल, 2 दिन पहले जब डीजीपी राजीव कुमार ने पत्रकार लोगों को संबोधित किया है, वहीं पे थोड़ा सा अंदाजा हम लोगों को मिल गया था कि जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों को ये बताया कि आप एविडेंस लेके आइए। पत्रकारों का काम नहीं है कि एविडेंस लेके आना, बिल्कुल किसी पीड़ित का काम नहीं है कि एविडेंस लेके आना। तो कई दिनों से इसका एक जो योजना है, वो योजना हम शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल की तरफ से देख रहे थे कि जिस तरह से मीडिया की तरफ से इन महिलाओं की बातों को पूरे दुनिया के सामने रखा गया है, तो अगर इसी को भी दबाया जाए, किसी एक दो को गिरफ्तार करके इनकी मन में एक खौफ पैदा किया जाए, तो एक इसी तरह से एक पत्रकार को उनका रिपोर्टिंग करते हुए जिस तरह से घिसटते लेके गया, वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर अपने आप कहता है कि पुलिस का काम है सिर्फ पत्रकारों के ऊपर मानसिक दबाव डालना। कृतिका जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स प्रसन्नजीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हो, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 10 में। आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि इस सत्र में इस मसले को लेकर कानून बनाया जा सकता है। लंबे समय से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की मांग रही है और अभी इसी महीने की 16 तारीख को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज सुनील शुक्रे ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए राज्य भर में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी। रिपोर्ट तैयार करने से पहले 23 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में एक सर्वे भी शुरू किया गया था, जिसमें 3.5 से 4 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी और 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बाकी किसी भी समुदाय के आरक्षण को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के सभी प्रमुख दलों में इस मसले को लेकर सर्वसम्मति काफी पहले से ही बनी हुई नजर आ रही है। आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि इससे पहले 2018 में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया जा चुका है, लेकिन इससे कुल आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया। बहरहाल नए साल का आज महाराष्ट्र में यह पहला सत्र होगा और इसलिए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और फिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में शिशिर शेलार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। शिशिर, जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है मराठा आरक्षण को लेकर के, और अब कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज
उनका जो आंदोलन की मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे कितने प्रतिशत पर बात बन सकती है, कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आज का अगर ये मांग करें तो काफी महत्वपूर्ण हो गया और इसके लिए पूरे मराठा, खास तौर पर महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय है उसको लेकर मुखर है सरकार। ये बात जानती है और इसीलिए सरकार ने जो है आज का जो विशेष अधिवेशन जो है वो बुलाया गया है। हालांकि इसमें कई सारी टेक्निकल बातें हैं, जैसे आपने कहा कि कितना प्रतिशत ये आरक्षण होगा, हालांकि इस जी बिल्कुल अब तक कोई स्पष्टता सरकार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार से जो कयास लगाए जा रहे हैं वो उसको अगर माने तो तकरीबन 10% से लेके 12% के बीच में जो है ये आरक्षण हो सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा समाज के जो नेता है मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने कहा था कि जो बाकी जो रिलेटिव्स कहेंगे उनकी अगर बात करें तो उनको भी इसमें ऐड करना चाहिए, उनकी मांग थी। ऐसे में क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेती है नहीं, जब से महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी मराठा समाज के आरक्षण की बात करें तो इससे पहले मराठा समाज को आरक्षण दिया गया था। लेकिन वो आरक्षण अगर देखें तो कोर्ट में जो हालांकि वो टिक नहीं पाया था, जिस प्रकार से कई सारे टेक्निकल बातें इसमें इन्वॉल्व थी। तो ऐसे में नए सिरे से एक बार फिर से जो मौजूदा सरकार है उसने काम शुरू किया। खास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनको ये जो है पूरा मामला दिया गया था। हालांकि इस बारे में उन्होंने एक सर्वेक्षण भी किया। उस सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षा और खास तौर पर नौकरी में किस प्रकार से मराठा समाज को आरक्षण मिले इसकी बात इसमें कही गई है। और उसी के अनुसार आज जब ये विशेष सत्र बुलाया गया तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस वक्त अगर बात करें इस विधेयक को लेकर जो मराठा आरक्षण के बारे में होगा, इसमें सभी पार्टी जो है वो सहमति यहाँ पे दर्शाई दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां सकारात्मक, उनका ये कहना है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 50% की जो सीमा तय की गई थी आरक्षण के लिए, वो सीमा अगर सरकार आरक्षण देती है तो इसके आगे यह आरक्षण बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या वो कोर्ट में अगर देखा जाए टिक पाएगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल होगा। और विपक्ष भी यही सवाल सरकार से पूछ रहा है कि सरकार जरूर मराठा को आरक्षण दे, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट की हम बात करें तो उसमें किस प्रकार से आरक्षण खरा उतरता है ये भी सरकार को देखना होगा। ये पहली प्रमुख बात होगी। और दूसरी बात ये भी है कि मराठा समाज को आरक्षण देते वक्त जो बाकी अन्य समाज है, खास तौर पर ओबीसी समाज, उस पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो, ये सरकार की मांग, ये पक्ष की मांग रही थी। और साथ ही साथ ये ओबीसी समाज की मांग भी रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा कि ओबीसी समाज और मराठा समाज आमने सामने है। क्योंकि मराठा समाज जो है, खासतौर पर जरांगे पाटिल की मांग की हम बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनको जो आरक्षण चाहिए वो ओबीसी समाज के अंतर्गत चाहिए। तो ऐसे में जो ओबीसी समाज है वो इसको अगर देखा जाए इसके लिए मंजूर नहीं है। तो ऐसे में किस प्रकार से सरकार जो है इन दोनों समाजों को समाधान कारक जो है इसका हल निकाल पाएगी, इस पर ध्यान देना होगा। और आज का यह अधिवेशन इसी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस पर नजर अपनी लगातार बनी रहेगी जब महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एक पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए जारी किए हैं। भाजपा को इस पर आपत्ति है क्योंकि कर्नाटक की सरकार पड़ोसी राज्य केरल की मदद कर रही है और ऐसे हालात में जब उसके अपने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष BY विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए सरकार द्वारा कर्नाटक के करदाताओं के धन का घोर दुरुपयोग पूरी तरह से अपमानजनक है। यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के संघर्ष के बीच उसके मंत्री राज्य के खजाने का एक एक रुपया लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। इसी मामले में सुल्तानगंज की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है और आज कोर्ट में बैलेट पेपर पेश किया जाएगा। इससे पहले बीते कल रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान खरीद फरोख्त पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव दिया कि दोबारा से चुनाव करवाए जाने के बजाय चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट डाले गए वोटों के आधार पर किया जाए। वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से अब पूरी तरह से कर्फ्यू हटा दिया गया है और इस संबंध में जिला अधिकारी नैनीताल वंदना सिंह द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। वंदना सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद जो दंगे भड़के थे उसके बाद से क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हुए और इस तरीके से कर्फ्यू में ढील भी दी गई थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से सामान्य है और अब कर्फ्यू भी पूरी तरह से हटा लिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आपको बता दें कि आज मिजोरम का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने मिजोरम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिजोरम का अनूठा सांस्कृतिक आकर्षण, इसकी समृद्ध सुंदरता और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी भरी भावना पर भारत को बहुत गर्व है। मिजो संस्कृति बहुत प्रेरणादायक है, जो परंपरा और सद्भाव का मिश्रण है। मिजोरम की निरंतर प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं साथ ही आपको बता दें कि आज अरुणाचल प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग भारत के विकास में भरपूर योगदान दे रहे हैं। राज्य की संस्कृति की भी बहुत प्रशंसा की जाती है, विशेषकर जीवंत जनजातीय परंपराओं और समृद्ध जैव विविधता की। आने वाले वर्षों में अरुणाचल प्रदेश समृद्ध बना रहे। और चलिए न्यूज़ एट 10 में अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि फ्रांस संसद के उच्च सदन के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर सोमवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। जेरार्ड लार्चर की ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जेरार्ड के साथ साथ 5 अन्य सांसदों का भी प्रतिनिधिमंडल भी है। ये सांसद सदन की विदेशी मामलों और रक्षा समिति के सदस्य हैं। फ्रांस संसद के उच्च सदन फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। जेरार्ड और प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इसके साथ ही लार्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वहीं भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2024 के लिए नई दिल्ली में हितधारकों का आगमन शुरू हो चुका है। रायसीना डायलॉग 21 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और ये वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगा। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ सम्मेलन युद्ध और शांति, तकनीकी नियमों, निवेश, नवाचार और अधिक जैसे विभिन्न उप विषयगत स्तंभों के तहत मुद्दों पर चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ग्रीस के प्रधानमंत्री भी भारत आ रहे हैं और वो रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। हर साल राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेता दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समसामयिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसर तलाशने के लिए नई दिल्ली में जुटते हैं। सम्मेलन की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और उसके बाद में अगले दिन 23 तारीख को अमूल के उसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे जिसका शिलान्यास उन्होंने 2 साल पहले किया था।
अमूल प्लांट के बनारस डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ हैं शंकर भाई चौधरी जी, जो बनास डेयरी के चेयरमैन हैं। बनास डेयरी यानी अमूल, और अमूल के प्रोडक्ट से हम परिचित हैं, पूरे देश में सप्लाई होती है। लेकिन खास इसलिए है ये बनास डेयरी कि यहाँ पर इसका आधारशिला यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने रखी थी। शंकर भाई, ये इसको हम कैसे माने कि जो आपने आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी और आज इस जगह हम आ गए हैं कि इसके अब लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री को, तो इसको आप कैसे? पूरे पूर्वांचल में एक दूध क्रांति की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बसी महिलाओं वो आत्मनिर्भर कैसे बने, उनको दूध की प्राइस कैसे मिले, वो पशुपालन के व्यवसाय को एक व्यावसायिक तौर पर कैसे ले सके। जैसे गुजरात में 25 लाख 50 लाख करोड़ तक महिलाएं इकोनॉमी एक साल में कर सकती है दूध के व्यवसाय से, तो यहाँ पर भी आत्मनिर्भर कैसे महिलाएं वैसे हो सकती है। ये कल्पना जो मोदी जी की है यहाँ पर साकार होने जा रही है। आपका उद्देश्य इसको कहाँ तक पहुँचाने का है, जो यहाँ के उत्पाद हैं, जो मिठाई हैं? मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि बनारस का रस वो पूरे दुनिया में कैसे पहुँचे। मैं मानता हूँ कि एक वैश्विक फलक पर ये बनारस की जो स्वीट है, खास करके भारतीय मिठाई है, रसगुल्ला हो, काजू कतली हो, ये सब भी वहाँ तक पहुँचेगी, दुनिया तक पहुँचेगी। ये वाराणसी के जो किसान हैं उनको आपका जो ये अमूल का उद्यम लगा है, ये किस तरह से लाभ पहुंचाएगा और किसानों की आय में किस तरह का इजाफा होगा? एक तो उनको पर्याप्त प्राइस भी मिलेगी, इनके अलावा कंटिन्यूड हर रोज दूध जितना भी है उतना दूध बनास अपने गांव में, उनके गांव में कलेक्शन करेंगे हम गांव की समिति के माध्यम से। व्यावसायिक तौर पर वो आत्मनिर्भर बने। 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपया का भी दूध महिलाएं गांव में अपने घर पे कैसे बर्बाद सके, वहाँ तक हमें पहुँचाने का प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है उनको साकार करने का काम बनास डेयरी कर रही है। श्वेत क्रांति का एक भाग्योदय प्रधानमंत्री जी ने पूरे पूर्वांचल में कर दिया है और उनकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने श्वेत क्रांति की शुरुआत कर दी है और लोकार्पण के साथ ही पूरे पूर्वांचल को इसका लाभ मिलेगा। इस अमूल के कंपनी का जो खुल रहा है, साथ ही किसानों के लिए, जो किसान महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार के बड़े अवसर और आय भी बढ़ाने का काम करेगा यह बनास डेयरी काशी में। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, बनास डेयरी, वाराणसी। और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां बद्रीनाथ धाम के तमाम इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम सहित ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी हैं। बद्रीनाथ में आधा फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहां की ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि लद्दाख के भी कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी के बाद स्थानीय लोग और पर्यटकों के बीच खुशी का माहौल है और लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कारगिल का एक छोटा सा गांव द्रास बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है और वहां की ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। और ऐसे में जो वहां के स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। बर्फबारी को देखकर उनमें भी खुशी का माहौल है। वहीं नई दिल्ली में 43वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 21 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की कई दिग्गज टीमें हिस्सा लेंगी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मनिंदर पाल सिंह से संवाददाता सुचित्रा ने खास बातचीत की है। आप सुनिए इस बातचीत को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ है मनिंदर पाल सिंह, जो सेक्रेटरी जनरल हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मनिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का नई दिल्ली में आयोजन कितनी बड़ी बात है? जैसा जैसा कंपटीशन का लेवल बढ़ता है उसी स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी स्तर और उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो ये एक हर चैंपियनशिप हमारे लिए एक नई चुनौती है। जैसा कि आपको अवगत करवाया कि इस बार एशियन चैंपियनशिप में 18 टीमों के करीब 500 से ऊपर एथलीट्स, करीब 650
से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आज तक का ये सबसे बड़ा नंबर है। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज ज़रूर था, बट मेरे को ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं गर्व से ये बात बोल सकता हूँ कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सहयोग है, वो सहयोग के कारण आज हम इस बात को बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि ये चैंपियनशिप अगर आज तक की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है तो सबसे सक्सेसफुल चैंपियनशिप भी बनेगी। साइकिलिंग की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ओलंपिक स्पोर्ट है जिसमें ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स होते हैं ग्रैब करने के लिए, तो किस तरह से देखते हैं भारत में अगर हम साइकिलिंग के फ्यूचर की बात करें? साइकिलिंग स्पोर्ट एक ऐसा स्पोर्ट है जो ओलंपिक्स में तीसरे नंबर पे आता है जहां तक मेडल्स की बात है। उसमें अलग डिसिप्लिन्स हैं, उसमें रोड है, ट्रैक है, एमटीबी है, बीएमएक्स है। भारत में ट्रैक का स्तर जो है वो बिल्कुल आज की अगर हम बात करें तो वो एक वर्ल्ड स्तर का हो चुका है। 2028, 2032 और 2036 का जो रोड मैप है साइकिलिंग का, वो बिल्कुल तैयार है। हम उस पे कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। भारतीय सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये जो 28, 32 और 36 की ओलंपिक्स का रोड मैप है साइकिलिंग के लिए, वो बिल्कुल बनके तैयार है। पिछले कुछ समय में देखा कि भारत के कई युवा साइकिलिस्ट निकल कर आए जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया। रोनाल्डो और डेविड बेकहम, दो नाम जो लोग फुटबॉल के लिए जानते थे, साइकिलिंग के लिए लोग जानने लगे हैं। तो भारत में अगर टैलेंट पूल की बात करें इस वक्त, किस तरह से देखते हैं और कैसा भविष्य आपको नजर आता है इंडियन साइकिलिंग का? जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो साइकिलिंग के लिए पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकिलिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग डिसिप्लिन्स हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो जैसे आपने मेंशन किया, रोनाल्डो हैं, ईसो हैं, डेविड हैं, तो ये जो एक कैटेगरी राइडर्स की उठ के आई, ये उस टैलेंट हंट के वजह से ही उठ के आई। ये देवर नॉट, वो साइकिलिस्ट नहीं थे। जब उनको आइडेंटिफाई किया, वो नाम से ही नहीं बट अपने खेल से भी फुटबॉल के साथ ही जुड़े हुए थे। रोनाल्डो, ईसो और रोजित जब वर्ल्ड चैंपियन बने, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक सेकंड स्ट्रिंग जो है राइडर्स की, उसमें चाहे डेविड बेकहम हो, चाहे वटाबा हो, तो ये एक दोबारा एक हमें एक बहुत आशा की एक बहुत बड़ी किरण नजर आ रही है और ये जारी रहेगा। ये जो पूल है ये दिस विल कीप गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मनिंदर पाल सिंह, जिनका ये मानना है कि देश में साइकिलिंग में टैलेंट पूल बहुत बड़ा है, टैलेंटेड साइकिलिस्ट की कमी नहीं है और भविष्य में इसके बढ़ने की ही उम्मीद है। कैमरा पर्सन आरके के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।